नहीं सुनाई। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ रूट्स। ठीक है। इससे पहले हम लोग सेल्स के बारे में, टिश्यू के बारे में से, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, स्क्लेरन काइमा, कोलेन काइमा सबके बारे में पढ़े। अब हम प्लांट के एनाटॉमिकल फीचर या इंटरनल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द रूट्स। रूट। ठीक है। ठीक है, देखो, रूट आप लोग आज प्लांट की बात करो तो एंजियोस्पर्म में दो तरह के प्लांट होते हैं, एक होते हैं डाइकाट, एक होते हैं मोनोकाट। तो दोनों के रूट के स्ट्रक्चर्स में, इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द मोनोकाट रूट। ठीक है। अब मोनोकाट के अगर हम ट्रांसफर सेक्शन कट करें, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं? थ्रू द ट्रांसफर सेक्शन। अगर ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो जो जनरल स्ट्रक्चर दिखता है, इट इज द स्फेरिकल इन आउटलाइन। देख रहे हैं, इट इज द स्फेरिकल इन द आउटलाइन एंड टुवर्ड द आउटर साइड सिंगल लेयर एपिडर्मिस इज प्रेजेंट। सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? सिंगल लेयर एपिडर्मिस इज द प्रेजेंट। सम epidermal cells are the evaginate to form the unicellular root hairs on the unicellular root hair. So this is called as the single layer epidermis. Below the epidermis, multi-layered parenchymatous cortex is the present. Parenchymatous cortex is the present, which is differentiated into the outer collenchymatous or in some plant sclerenchymatous, hypodermis, upper 2 or 3 layer that are the thick wall, it become the collenchymatous, they make the hypodermis. Below this parenchymatous cortex is the present, that is called as the inner cortex. Okay. In the center vascular cylinder or the steel is the present. अगर स्टील्स के अरेंजमेंट की बात करोगे तो इन द स्टील टुवर्ड द आउटर साइड single layered endodermis is the present. Toward the outer side, single layered endodermis is the present. Below this, multi-layered pericycle is the present. It may be the single layer or it may be the more than 1 to 3 layer. And xylems and the phloems are the present at the different radii. They are the present at the different radii and in the alternate position. This type arrangement is called as the radial arrangement. It is called as the radial arrangement. This is the, देखिए, this is the xylem, this is the phloem, xylem, phloem, xylem, phloem, xylem, phloem. Because it is the roots, here the in the xylem, protoxylem point is oriented toward the outer side. इधर की तरफ मुंह फेस किया हुआ है बाहर की तरफ. Therefore, this condition is called as the X-arch condition. This is called as the X-arch condition. In the center, parenchymatous pith is present. Parenchymatous pith is present. Between xylem and phloem, some parenchymatous are in the some cases. Sclerenchymatous cells are the present that are called as the conjunctive tissue. इनको क्या कहते हैं? That are called as the conjunctive tissue, which help in the lateral conduction of the waters and minerals या food. So this is the all about the transverse section of the monocot root. ठीक है. तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन कार्टेक्स. कार्टेक्स क्या हो सकते हैं? इट में बी डिफरेंशिएटेड इनटू द hypodermis and the cortex. Outer side is sclerenchymatous that are called as the hypodermis. Below this, endodermis is present. In the endodermis, Casparian strip is the present. एक बैंडेज पाए जाते हैं that are called as the Casparian strips in the endodermis. Below this, pericycle is the present. It is the few layer thick. It is more than one layer in case of the monocot. Okay. और below this vascular cylinder is the present. Vascular cylinder में xylem and phloem are the present at the different radii. In between
xylem and phloem. Some tissue are the present that are called as the conjunctive tissue. It is called as the conjunctive tissue, which is the sclerenchymatous in case of the monocot root. चलिए यहीं से देखते हैं डाइकाट रूट के बारे में. दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द डाइकाट रूट. Just like that, toward the outer side, single layer epidermis is the present. Some are the evaginated to form the unicellular root hair. Below this, cortex is the present. It is also differentiated in the some root, hypodermis and the cortex. Toward the outer side, thick wall that becomes the hypodermis. In the center, vascular cylinder is the present. Vascular cylinder is the present, which is covered by the single layered endodermis. Which covered by the single layered endodermis. It also has the Casparian strip like that monocot. Below this, single layered pericycle is present. एक डिफरेंस आ गया ना. वहां पे क्या था, मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल. हियर इज द सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल इज द प्रेजेंट. एंड हियर आल्सो जाइलम एंड फ्लोएम आर द present at the different radii. They are present at the different radii. Xylem, phloem, xylem, phloem, xylem, phloem. This is the radial arrangement of the xylem. Radial arrangement of the vascular tissue. Here also, in between xylem and phloem, some tissue are the present that are called as the conjunctive tissue. But here conjunctive tissue is the not sclerenchymatous in nature. It is the polenchymatous in nature, not sclerenchymatous. Dicot में क्या होते हैं? They are not the sclerenchymatous. So that are the polenchymatous in nature. In center, pith is present or it may be the absent. Generally in case of the dicot क्या होते हैं? Pith are the very delimited, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं. So that are the. Here also protoxylem point is oriented toward the outer side. Therefore, it is the X arch condition. देखिए protoxylem कहाँ है? बाहर की तरफ. So this condition is called as the X arch condition. This is whole structure of the dicot root. ठीक है. तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस स्पेशल नहीं है. एपिडर्मिस, रूट हेयर, कार्टेक्स, it may be the differentiated into the hypodermis or the and the inner cortex, endodermis with the Casparian strips, pericycle. It may be the generally it is the single layer. In the center, pith is present, but they are the it may be present or it may be the delimited. Very little amount में pith पाया जाता है डाइकाट रूट में, जबकि मोनोकाट में क्या होता है? लार्जर अमाउंट में पाया जाता है. आपको डिफरेंस दिखता है. Vascular cylinder, conjunctive tissue are the also present, which is the polenchymatous in nature. ठीक है. तो these are the difference आप कर सकते हो. एक तो मोनोकाट डाइकाट में क्या डिफरेंस है? Pith are developed, more developed in case of the monocot. Pith are the smaller in case of the dicot. वहां पे जाइलम बंडल क्या है? बहुत ज्यादा है. यहाँ पे जाइलम के बंडल्स क्या हैं? They are the little in number. It may be the 4 or tetrarch or hexarch, yeah, the generally it is a more than not more than 8. ठीक है. तो जाइलम बंडल नंबर्स क्या होते हैं? They are the generally in the even numbers 2, 4, 6 or the 8. But here is the xylem is the many xylem. ठीक है. That are the more xylem bundle are the present. In case of the monocot root, secondary growth is not present. सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है मोनोकाट में, जबकि डाइकाट रूट में क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है. आपको अभी डिटेल में बताएंगे जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे कैसे डाइकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है. यानी जो कैम्बियम होता है उसमें. हाँ नहीं, कैम्बियम होता नहीं. कैम्बियम लेटर डेवलप करता है. शुरुआत में तो कैम्बियम आपको यहाँ भी नहीं पढ़ा है. देखिए आपको कहीं कैम्बियम की बात किया क्या मैंने? डाइकाट रूट में अभी नहीं बात किया. यहाँ पे लेटर डेवलप होता है, वो सेकेंडरी ग्रोथ में हम पढ़ाएंगे. ठीक है. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कैम्बियम नहीं होता है दोनों में, ना वो मोनोकाट रूट या डाइकाट रूट. वो बात स्टेम में होता है प्राइमरी कंडीशन में. ठीक है.
और तीसरा डिफरेंस क्या था, कंजंक्टिव टिश्यू दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट मोनोकाट में दे आर द स्क्लेरेनकाइमेटस, बट इन केस ऑफ द डाइकाट इट इज द पैरेनकाइमेटस, इट इज द लिविंग। ठीक है, तो क्या होता है कंजंक्टिव टिश्यू, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंजंक्टिव टिश्यू फाउंड इन द रूट, प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द रूट। ठीक है, कंपैरिजन देख लीजिए स्ट्रक्चर में, यहाँ पे देखिए जाइलम क्या है, प्रोटोजाइलम पॉइंट 1 2 3 4 मेनी, हियर द जाइलम इज द 1 2 3 4। ठीक है, टेट्रार्च, टेट्रार्च, 6 होंगे तो हेक्सार्च। ठीक है, जनरली इट इज द मोर इन केस ऑफ द मोनोकाट। देखिए यहाँ पे पिथ क्या है, बहुत ब्रॉडर है, जबकि यहाँ पे पिथ क्या है, दैट आर द स्मॉलर। ओके, here also endodermis is the present, here also the endodermis is present. Below this pericycle is the present. Generally in case of the dicot, pericycle is the single layer, but in case of the Layer. monocot it is the more than one layer, more than one layer. So these are the all about the, इसमें भी unicellular hair होता है, इसमें भी unicellular होता है, but here is the conjunctive tissue। देख रहे हैं, conjunctive tissue are the present, that conjunctive tissue are the parenchymatous, but in case of the monocot root, conjunctive tissue are the sclerenchymatous। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, एनाटॉमी ऑफ द रूट। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ द स्टेम। एनाटॉमी ऑफ द स्टेम की बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं मोनोकाट के स्टेम की। अगर जनरल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर की तरफ क्या होगी, सिंगल लेयर एपिडर्मिस। कुछ प्लांट में इट में बी द कवर्ड बाय द क्यूटिकल और इट में बी नॉट कवर्ड बाय द क्यूटिकल। जो थोड़ा जीरोफिटिक प्लांट होंगे वो क्या होंगे, कवर्ड होंगे क्यूटिकल से, अदरवाइज नहीं भी हो सकते हैं। बट टुवर्ड द आउटर साइड सिंगल लेयर एपिडर्मिस इज द प्रेजेंट। हियर रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट, कोई इस तरह का हेयर लाइक या कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। बिलो दिस hypodermis is the present, that is the parenchymatous are the sclerenchymatous, sorry, pollenchymatous are the sclerenchymatous. In the center vascular cylinder are the present, that are the vascular bundle are the scattered, they are the छितरे होते हैं, पूरे ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं। Here the endodermis, pericycle, they are the delimited। आप ये भी कह सकते हो कार्टेक्स पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कार्टेक्स में बिखरे पड़े रहते हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहे हैं आप यहाँ पे एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल का या पिथ का। तो दे आर द वैस्कुलर बंडल आर द स्कैटर्ड इन द कार्टिकल रीजन। ओके, और इनके वैस्कुलर बंडल दे आर द कवर्ड बाय द बंडल शीथ। ये क्या होते हैं, दे आर द कवर्ड बाय द अनदर लेयर दैट आर कॉल्ड एज द बंडल शीथ। हियर द प्रोटोजाइलम पॉइंट are the more than 2 or that are the oriented toward the outer side, it may be that sorry toward the inner side। देखिए कहाँ है प्रोटोजाइलम, सब के सब किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। इट आल्सो हैव द 2 मेटाजाइलम, सब में देखिए 2 मेटाजाइलम, और देन द दिस इज द फ्लोएम। so this is the transverse section of the monocot stem। ठीक है, तो पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है, और एक खासियत क्या होती है इसका, वैस्कुलर बंडल दे आर द कवर्ड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। और क्योंकि इसमें कोई जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, देयरफॉर इट्स वैस्कुलर बंडल इज द क्लोज टाइप, इट इज द स्कैटर्ड, कंजॉइंट एंड द क्लोज टाइप। ओके, और हाइपोडर्मिस इज द स्क्लेरेनकाइमेटस। चलिए बात करते हैं डाइकाट स्टेम की। देखिए डाइकाट स्टेम की खासियत होती है तो एपिडर्मिस, इट में भी द कवर्ड बाय द क्यूटिकल आर नॉट, अगर हो सकता है कुछ प्लांट में हो, कुछ में नहीं भी हो सकता है क्यूटिकल। ठीक है, बट एट द एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड मल्टी सेलुलर ट्राइकोम इज द प्रेजेंट, मल्टी सेलुलर ट्राइकोम इज द ट्राइकोम। हेयर क्या है, हेयर और ट्राइकोम में अंतर है। जो रूट में पाया जाता है दैट इज द यूनिसेलुलर,
It is the multicellular. Multicellular. Okay. Trichome is the present only in case of the dicot stem. मोनोकाट में स्टेम में नहीं पाया जाता. तो एक मेजर डिफरेंस आपको दिखा. Here outer cortex is differentiated into the hypodermis, which is the collenchyma that are called as the hypodermis. It is also differentiated into the outer cortex, middle cortex, inner cortex. कई में देखे होंगे आप. So generally they are the parenchymatous. Okay. In the center, vascular cylinder is the present, which is bounded या delimited by the cortex by the single layered endodermis. जबकि आप मोनोकाट में इंडोडर्मिस नहीं पाए जाते. यहाँ पे इंडोडर्मिस आ गया. बिलो द इंडोडर्मिस पेरिसाइकिल इज द प्रेजेंट. एंड वैस्कुलर बंडल आर द कंजॉइंट, कोलेटरल एंड द ओपन टाइप. कंजॉइंट का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर द प्रेजेंट एट द सेम रेडियाई. Same radii. They are open type because in between xylem and phloem, cambium is the present. In between xylem and phloem, cambium is present. In between vascular bundle, some parenchymatous cells are present that are known as the medullary ray. जो vascular bundle के बीच में जो cells हैं, that are called as the medullary ray. And in the center, parenchymatous pith is present. That is also called as the medulla. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? That is also called as the medulla. pith को क्या एक शब्द यूज करते हैं? That is also known as the medulla. Okay. So this is the all about the anatomy of the dicot stem. देखते हैं what difference in between dicot and monocot. ठीक है. तो ओवरऑल देखिए, epidermis single layered, hypodermis that may be the collenchymatous, cortex parenchymatous, endodermis single layered, pericycle. ठीक है. और vascular bundle, they are the conjoint, open type, arranged in the ring, and vascular cambium is the present in between xylem and phloem. चलिए थोड़ा डाइकाट स्टेम के एनाटॉमी के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं. ठीक है. क्योंकि ये डिटेल में क्या सारी बातें तो हम करा ही चुके हैं, केवल हम स्लाइड आपको दिखा देते हैं. ठीक है. देखिए कार्टेक्स है. कार्टेक्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं. आउटर कार्टेक्स, हाइपोडर्मिस, मिडिल कार्टेक्स, इनर कार्टेक्स एंड द एंडोडर्मिस. ओके. स्टील, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, मेडुलरी रे, पिथ. देखो एंडोडर्मिस इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टील. ध्यान देना, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कार्टेक्स. और स्टील क्या है? पेरिसाइकिल्स के अंदर के सारे भाग को क्या कहते हैं हम? स्टील. तो एंडोडर्मिस इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टील. ओके. देखिए आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस. देख रहे हैं, इट इज द कवर्ड बाय द क्यूटिकल. क्यूटिकल क्या होते हैं? दैट आर द फैटी सबस्टेंस मेड अप ऑफ द क्यूटिन. क्यूटिन से बने होते हैं, देयरफॉर इट कॉल्ड एज द क्यूटिकल. देखिए एपिडर्मिस पे क्या पाए जाते हैं? तमाम मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं. दैट आर कॉल्ड एज द ट्राइकोम. मल्टी सेलुलर, नॉट इट इज द यूनिसेलुलर. Okay, that are also developed by the synthesized by the epidermis. epidermis से ही बनते हैं. ठीक है. और हर्ब्स में तो पूरे लाइफ में पाए जाते हैं. देखते हैं ना, हर्ब के जो प्लांट देखोगे तो आप हेयर ही देखोगे. कभी देखे हो आप कुकर बीट्स के प्लांट देखना या टमाटो देखना, तो उसमें तमाम इस तरह के आपके स्टेम में हेयर दिखेंगे. हेलो. हाँ सर. दिखते हैं कि नहीं? हाँ. छोटे छोटे. हाँ सर. ठीक है भाई, बीच बीच में अपना प्रेजेंट दिखाते रहिए. आप लोग एकदम शांत मत हो जाइए. भागवत कथा की तरह केवल श्रवण मत करिए. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो दैट आर द मल्टी सेलुलर हेयर इज द प्रेजेंट. ओके. दैट आर कॉल्ड एज द ट्राइकोम्स. ठीक है. तो कार्टेक्स में ऑलरेडी बता चुके हैं. दैट आर द हाइपोडर्मिस, outer cortex, inner cortex and the endodermis. ठीक है. हाइपोडर्मिस क्या होते हैं? जनरली इट इज द collenchymatous. It becomes the thick wall. They are the thick wall. It provides the mechanical strength to the stem. Generally in the hypodermis, chloroplast are the absent. Xerophyte में hypodermis are become the sclerenchymatous. क्या हो जाते हैं? It become the
स्केलर काइनेटिक, इसका नाम क्या है? डेड हो जाते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और खास करके जो हर्ब्स प्लांट है, खास करके जो क्लाइंबर्स हैं, उनमें तो इनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। इसमें उनमें जो भी मजबूती आप देखते हैं ड्यू टू द हाइपोडर्मी। ठीक है, देखिए तमाम है। कुछ में क्या होते हैं, कार्टेक्स में एयर कैविटी आ जाती है, दे आर द एक्ट एज द एयर एनकाइमा, लाइक दैट इज द हाइड्रोफाइट्स। खास करके जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट है, क्योंकि उनमें बाउंसी हो ताकि वो क्या हो, हल्के हो जाए, तैरते रह जाए, तो इसके लिए क्या हो जाता है, दैट बिकम द हेयर एंड सॉरी एयर एनकाइमेस। ओके, एयर चेंबर। इनर कार्टेक्स होते हैं कुछ प्लांट के, दैट आर द फिल्ड विद द लैटेक्स आर द रेजिन्स। लेटेक्स। तो कुछ प्लांट में ये भी खासियत पाई जाती है, लाइक दैट रेजिन कायनाल्स आर फाउंड इन द एनाकार्डियम। ओके, तो जो रेजिन्स कैनाल या इस तरह के सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, सब कहाँ पाए जाते हैं, दे आर आल्सो फाउंड इन द कार्टेक्स। इंडोडर्मिस बैरल शेप सेल होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। ठीक है, देखिए पूरी इसे क्या डिपोजिशन है सुबेरिन एंड द लिग्निन की, दैट इज द कैस्पेरियन, क्या बोलते हैं इसको, कैस्पेरियन बैंड्स बोलते हैं। देख रहे हैं, देखिए इंडोडर्मिस का फंक्शन वैसे अननोन है, बट दे डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ द वाटर्स। ये वाटर के मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं अपने थ्रू। ठीक है, स्टील की बात करें तो स्टील में क्या है, सबसे बाहर की तरफ पेरिसाइकिल है, उसके बाद वैस्कुलर बंडल है, फिर मेडुलरी है और पिट्स है। ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, केवल आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देख रहे हैं, वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, मेनी होते हैं, और दे आर द अरेंज इन द रिंग। अरेंज इन द रिंग, जनरली दे आर द लिमिटेड नंबर, इट मे बी द 6 to 8। 6 to 8, ये भी क्या है देखिए, इवन नंबर में 6 से 8, हेक्सा 2 8। ठीक है, देखिए जो प्रोटोजाइलम पॉइंट हुए हमेशा कहाँ होते हैं, स्टेम में अंदर की तरफ होते हैं। यानी किस तरह कंडीशन पाई जाती है, दैट आर द इनडार्च कंडीशन। क्या पाई जाती है, इनडार्च। स्टेम इनडार्च होते हैं, जबकि रूट में क्या होते हैं, दे आर द एक्सआर। बताए थे, ऑलरेडी बताए थे आप लोगों को। देखिए दिस इज द प्रोटोजाइलम जो सबसे पहले बनता है, दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म बाय द कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम से जो बनेगा वो तो सेकेंडरी हो जाएगा। जो शुरुआत में जो प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम या जो एम्ब्रियोनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, उससे जो डेवलप होता है, दैट आर कॉल्ड एज द प्रोटोजाइलम और द मेटाजाइलम। ठीक है, और उसके बाद जो जाइलम जो कैम्बियम से डेराइव्ड होंगे, दैट आर द कॉल्ड एज द सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम आर द डेराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, दैट इज द, जैसे आप कई थ्योरी पढ़े हैं, प्लूरोम, पेरिब्लेम और ठीक है, तो उनसे अगर डिराइव होते हैं तो दैट आर कॉल्ड एज द प्रोटोजाइलम। फंक्शन क्या है ऑलरेडी आप जानते हैं, जाइलम वैस्कुलर बंडल बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह फ्लोएम में भी होता है, प्रोटोफाइलम, फ्लोएम एंड द मेटाफ्लोएम। ठीक है, और कैम्बियम क्या होते हैं, दैट आर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोकैम्बियम। जो शुरुआती कैम्बियम बनता है, जो इनिशियल में बनता है, उसके ही रिमेनिंग पार्ट है, दैट आर कॉल्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोकैम्बियम।
और देखिए इनके बीच में जो पैरेनकाइमा दैट आर कॉल्ड द मेडुलरी रे, इनको क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड द मेडुलरी रे, दे आर द रेडियली इलांगेटेड, रेडियस में क्या होता है, लंबाई में ग्रो करते हैं। इट आल्सो हेल्प इन द लेटरल कंडक्शन ऑफ द वाटर्स एंड मिनरल्स, क्या करते हैं, इट हेल्प इन द लेटरल कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल। इनका अगर फंक्शन की बात करोगे, एक तो लेटरल कंडक्शन है ही है, और बाद में जो, अच्छा खैर हम सेकेंडरी ग्रोथ में बताएंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है आप लोग जानने की। और इन सेंटर पिथ इज द प्रेजेंट, जेंट इज आल्सो अ मेडुला, हाँ दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। चलिए तो बात पिथ कर का ले काम क्या होता है? इसका। पिथ कुछ प्लांट्स में दे आर द एक्ट एज द स्टोरेज मटेरियल, क्या करते हैं, स्टोर्स करती है, बट एट द ओल्डर कंडीशन पिथ आर द डिलिमिटेड या आर द स्क्वैश्ड बाय द सेकेंडरी जाइलम, फिर क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, खत्म हो जाता है पूरी तरह से। खास करके जो वुडी प्लांट है उनमें आप पिथ तो देखोगे ही नहीं, ओल्ड प्लांट में वो क्या हो जाते हैं, दे आर द एक्सपेंड आर द क्रश्ड बाय द सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो अगर प्राइमरी फंक्शन देखोगे शुरुआत में, इट एक्ट एज द स्टोरेज ऑफ द फूड, स्टोर करते हैं फूड मटेरियल, ताकि कैम्बियम भी क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो शुरुआती काम करता है, अदरवाइज दे आर द कोई विशेष इसका वर्क नहीं। चलिए डाइकाट स्टेम और मोनोकाट स्टेम में अंतर देख लीजिए। इपिडर्मिस दोनों में सिंगल लेयर, बट डाइकाट में मल्टीसेलुलर हेयर्स आर ट्राइकोम विद द प्रेजेंट, जबकि यहाँ पे क्या होंगे, विदाउट हेयर होंगे। हाइपोडर्मिस डाइकाट में होंगे तो कोलेनकाइमेटस होंगे, कभी स्क्लेरनकाइमेटस नहीं होंगे, जबकि मोनोकाट में होंगे दे आर द स्क्लेरनकाइमेटस। क्यों ऐसा हुआ भाई, क्योंकि देखो डाइकाट में तो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन दे देगा, सेकेंडरी टिश्यू दे देंगे, जाइलम एंड फ्लोएम दे देंगे। मोनोकाट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ तो होता ही नहीं है, तो अगर मजबूत काटे तो स्टेम खड़ी कैसी रहेगी मोनोकाट की, तो दैट आर जो भी स्ट्रेंथ आती है मोनोकाट में वो किसके थ्रू आती है, हाइपोडर्मिस काटेस की वजह से आती है। इसमें कुछ वुडी भी प्लांट होते हैं, हाँ वो कुछ वुडी भी हो जाते हैं, ठीक है। तो बम्बू, ज्यादा मजबूत क्या होते हैं, कार्टिकल रीजन मजबूत होता है, बम्बू जैसे। कार्टेक्स पैरेनकाइमेटस होंगे, यहाँ भी पैरेनकाइमेटस होंगे। इंडोडर्मिस सिंगल लेयर, इंडोडर्मिस पेरिसाइकिल और मेडुलरी रे जो ये प्रेजेंट यहाँ पे है, सब के सब क्या होते हैं, मोनोकाट में टोटली एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट। क्लियर। वास्कुलर बंडल यहाँ रिंग में होता है, वहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं। यहाँ पे कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप होता है, यहाँ पे कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज टाइप, यानी हम आर द एब्सेंट। हियर आल्सो इंडार्च, हियर आल्सो इंडार्च, ओके। बंडल सीथ में भी द एब्सेंट इन द केस ऑफ द डाइकाट, डाइकाट में बंडल सीथ नहीं पाए जाते हैं, यानी बंडल के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं पाई जाती स्क्लेरनकाइमेटस, जबकि बंडल सीथ आर द प्रेजेंट इन द केस ऑफ द मोनोकाट। मोनोकाट में क्या होते हैं, बंडल सीथ होते, ठीक है। पिथ डाइकाट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकाट में तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं है, क्योंकि पूरा कार्टेक्स ही क्या होता है, में स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो किसी को हम पिथ कहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो दैट आर द, दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन डाइकाट एंड द मोनोकाट स्टीम, ठीक है। ये भी कह सकते हो सेकेंडरी ग्रोथ एक में होती है, एक में नहीं होती है, और कोई विशेष बात तो है नहीं इसमें बताने लायक, ठीक है। एनाटॉमिकल फीचर में देखिए, यहाँ पे अरेंज है रिंग में, यहाँ पे क्या दे आर द स्कैटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैम्बियम दिख रहा है, यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं दिख रहा है। चलिए बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। अब लीफ आप देखेंगे तो फ्लैट होती है, उसकी दो सतह होती है, एक ऊपरी सतह, एक निचली सतह, ठीक है। अब ऊपरी सतह को बोलते हैं एबैक्सियल साइड, निचली सतह को क्या बोलते हैं, एडैक्सियल साइड, दैट आर कॉल्ड द एडैक्सियल साइड, एडैक्सियल, ठीक है। ऊपर भी एपिडर्मिस होता है, नीचे भी एपिडर्मिस होता है, तो दैट आर कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को क्या कहते हैं, इनर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस या इनर एपिडर्मिस दे आर द कवर्ड बाय द वैक्सी क्यूटिकल, क्यूटिकल से कवर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो निर्भर करेगा वो प्लांट किस तरह का है, जीरोफाइटिक है या क्या है, ओके, या वाटर क्राइसिस कंडीशन में है या नहीं है। जस्ट एपिडर्मिस आर द सिंगल लेयर्ड
at the some place epidermis are the in the epidermis single pore like structure is the present, pore like structure is present that are called as the stomata. इनको क्या कहते हैं? that are called as the stoma or the stomata. वो अपर एपिडर्मिस भी हो सकता है, लोअर पे भी हो सकता है, या हो सकता है केवल लोअर पे हो अपर पे ना हो, या हो सकता है केवल अपर पे हो, वो कंडीशन बताएगा। ठीक है, एक हम आइडियल लीफ की बात कर रहे हैं। बिलो द एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड मेसोफिल सेल्स आर द प्रेजेंट, दे आर द कॉलमनर टाइप, दे आर द कॉलम जैसे होते हैं, देख रहे हैं, लंबे लंबे इलांगेटेड, दैट आर कॉल्ड द पाइलिसेड मेसोफिल्स। इनको क्या कहते हैं? पाइलिसेड मेसोफिल्स। बिलो दिस स्पॉन्जी मेसोफिल्स से आर द प्रेजेंट। ये क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, लूजली पैक होते हैं, दे आर कॉल्ड द स्पॉन्जी मेसो। ठीक है, तो दे आर द, देखिए, दे आर द पाइलिसेड से। ये रेडियली इलांगेटेड हो, दे आर फिल्ड विद द क्लोरोप्लास्ट। इनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। जबकि स्पॉन्जी जो होते हैं, दे आर द क्लोरोफिल, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जनरली इट इज द नॉट फोटोसिंथेटिक, इट इज द हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं जो पाइलिसेड्स में बनते हैं। ठीक है, स्टोमेटा की बात करोगे तो क्या करते हैं? अपने स्पेशल मैकेनिज्म द्वारा ये ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ द वाटर वेपर टेक प्लेस। ठीक है, तो ये तो हम लोग डिटेल में स्टोमेटा में पढ़ेंगे। अभी टॉपिक है आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक है, कैसे हो? चलिए अब देख लें व्हाट डिफरेंस इन बिटवीन डाइकाट लीफ एंड द मोनोकाट लीफ। ठीक है, तो डाइकाट लीफ की बात करो, जो अभी तक बातें हम किए हैं, डाइकाट में क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, और वहां पे सेंटर में क्या होती है? एक मोटी सी रिब होती है, दैट इज कॉल्ड एज द मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब। इट कंटेन द सिंगल वेस्कुलर बंडल। ये क्या है? पूरा एक वेस्कुलर बंडल कवर होता है। देखिए, दे आर द, इट इज कवर्ड बाय द बंडल शीथ। याद करना, स्टेम में कहा कि डाइकाट में बंडल शीथ नहीं होता है, होता है लेकिन लीफ में होता है, लीफ में होता है। ठीक है, दे आर द कवर्ड बाय द बंडल शीथ। इट आल्सो हैव द प्रोटोजाइलम पॉइंट, दे आर द अरेंज इन द कंजॉइंट कोलेटरल एंड द ओपन टाइप। ठीक है, दिस इज द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, दिस इज द पाइलिसेड पैरेन्काइमा, और केवल यहाँ पे पाया जाता है। और इपिडर्मल हेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी होते, कुछ में लोअर साइड में होते हैं, कुछ में, कुछ लीफ देखते हैं क्या होती है? ग्लैब्रस होती है। नीचे की सतह पे देखेंगे तो बहुत सी पत्तियां आपको हेयर ही दिखेंगी, टच करेंगे तो वो निर्भर करता है कौन सा प्लांट है। ठीक है, तो दैट आर द पाइलिसेड पैरेन्काइमा, इलांगेटेड अरेंज होते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा राउंडेड सेल्स होते हैं विद द लार्ज स्पेस एंड द एयर कैविटी। वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं वेन्स में भी और मिडरिब में। जो भी वेन दिखाई देंगे वहां से भी कट करेंगे तो आपको वेस्कुलर बंडल दिखाई देगा, मिडरिब में भी दिखाई देगा। दे आर द कवर्ड बाय द थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। ठीक है, और दिस इज द एडेक्सियल यानी अपर सरफेस वाला एपिडर्मिस, एंड अबैक्सियल लोअर सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। ठीक है, देखिए पूरा एक टाइपिकल स्ट्रक्चर आपको कैसे लीफ का सेक्शन कट करेंगे तो दिखाई देगा। देख रहे हैं? चलिए मोनोकाट की लीफ की बात कर लें। यहाँ भी एपिडर्मिस है, दोनों तरफ एपिडर्मिस है, बट एक खासियत होती है यहाँ पे, दैट हैविंग द बुल्ली फॉर्म सेल्स। क्या पाई जाती है? एक स्पेशल टाइप सेल्स पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द बुल्ली फॉर्म सेल, व्हिच इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ द मोनोकाट लीफ के एपिडर्मिस में, दैट आर कॉल्ड द बुल्ली फॉर्म सेल। क्योंकि इनमें क्या होता है? पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। मोनोकाट में क्या होता है? पैरेलल वेनेशन। अगर ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे लीफ के तो बहुत सी वेन्स दिखाई देंगी आपको पैरेलली। देखिए 1 2 3 कट होंगे।
ठीक है, all are the conjoined, collateral and closed type, not it is the open type. type. It is also covered by the bundle C. C. और दोनों तरफ क्या होंगे, थोड़े से स्केलर गायमेटा सेल्स होंगे, बट here mesophyll cells are the not differentiated into the spongy parenchyma and the palisade parenchyma. कोई इस तरह का डिफरेंशिएशन मोनोकाट लीफ में नहीं होता कि नीचे की तरफ स्पॉन्जी है, ऊपर की तरफ पैलिसेड है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। तो नो डिफरेंशिएशन बिटवीन पैलिसेड एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। अदरवाइज लगभग सब कुछ सेम है। देखिए एक डाइकाट लीफ है, रेटिकुलेट वेनेशन, ये क्या है, मोनोकाट, एक पैरेलल वेनेशन। अब यहाँ से जहां जहां वेन होगी वहां वहां आपको वेस्कुलर बंडल कट करेंगे तो दिखाई देगा, जबकि यहाँ पे कट करेंगे तो इस सेक्शन में दिखाई देगा, ये तो कट ही नहीं होगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये इसका ओरिएंटेशन किधर है, इस साइड में। चलिए डिफरेंस देख लें। मोनोकाट में बोथ साइड में स्टोमेटा पाए जाते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, एम्फीस्टोमेटिक। अगर दोनों तरफ बाहर भी अंदर भी बराबर संख्या में पाए स्टोमेटा तो दैट आर कॉल्ड द एम्फीस्टोमेटिक, ठीक है। डाइकाट में जनरली लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, अपर पे भी पाए जा सकते हैं, लेकिन लोअर पे ज्यादा पाए जाते हैं, अपर पे कम पाए जाते हैं, ठीक है। केवल लोअर पे पाए जाएंगे हाइपोस्टोमेटिक, केवल अपर पे पाए जाएंगे इपिस्टोमेटिक। बुल्ली फॉर्म सेल्स मोनोकाट में पाए जाते हैं ऑन द अपर सरफेस, जबकि बुल्ली फॉर्म सेल्स आर द एब्सेंट इन केस ऑफ द डाइकाट। मीजोफिल डिफरेंशिएट नहीं होता है इसमें, मीजोफिल पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में, जबकि डाइकाट में दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड एंड द स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। देखिए अगर आसपास देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये क्या है, स्पंजी पैरेन्काइमा, डाइकाट लीफ है, जबकि यहाँ पे देखिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ऑल आर द एलाइक, चाहे इनर वाला ले लें चाहे ऊपर वाला ले लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इपिस्टोमेटा के आसपास के जो सेल्स हैं, इट मेक द बुल्ली फॉर्म सेल्स अपर एपिडर्मिस, ओके, और दीस आर द जाइलम, मेटाजाइलम, दे आर आल्सो कवर्ड बाय द बंडल सी, और मेनी दिखाई दे रहे हैं कई, चूंकि क्या है, पैरेलल वेनेशन है जिसकी वजह से एक कट होते, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ। दोनों आपको बताए, डाइकाट मोनोकाट, दोनों में क्या डिफरेंस है, डाइकाट मोनोकाट के रूट में, डाइकाट मोनोकाट के स्टेम में, डाइकाट मोनोकाट के लीफ में। दीज आर द बेसिक थिंग, ये बेसिक चीजें हैं, इनके सारे बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको माना जाता है कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारे बीएससी के सिलेबस में ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस केवल आपका फंडामेंटल क्लियर हो इसके लिए इस 2 दिन से जो पढ़ा रहे हैं बेसिक एनाटॉमी, ठीक है। ये आपके पार्ट सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है, एडवांस एनाटॉमी है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज द सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि।